We'll start with a very quick revision of what we have seen in the last lecture. So in the last session, we have seen what is longitudinal or tensile stress, what is longitudinal or tensile strain, volume stress, and volume strain. Volume stress is also called as hydraulic stress. So just for a quick revision before we go ahead with the next type of stress and strain. So if you remember, while studying tensile stress, we have taken a wire, a string, or it was suspended from a rigid support and it was loaded with a weight. So it was loaded with some weight here, mg. तो इसका इनिशियल लेंथ था l और जब आपने लोड लगा दिया तो लोड मतलब mg एक्ट्स ऑन दिस वायर. तो ये जो फोर्स है इट इज एक्टिंग ऑन whole wire. So if you remember, we have defined something called as tensile stress, or it is also called as longitudinal stress. It is defined as force acting per unit area of the wire, in this case wire. और जब हम फोर्स बोलते हैं तो ये फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन आफ्टर यू अप्लाई दिस लोड, देयर विल बी एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इलोंगेशन होगा. इलोंगेशन होगा मतलब इंक्रीज इन लेंथ होगा. तो लेंथ विल इंक्रीज, द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज. एंड इफ यू रिमेंबर, ये इंक्रीज इन लेंथ को हमने बोला था डेल्टा एल. Then we have defined what is called as tensile strain. Change in length per unit original length मतलब delta L by L. तो रिवीजन में just important points we are highlighting, right? तो tensile stress is force upon area. और इसको tensile stress इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, अगर आपको याद होगा हमने डिफाइन कैसे किया था. When deforming force produces change in length of the body, then the stress associated with the force is called as tensile stress. Similarly, the strain associated with the body with the force is called as tensile strain or longitudinal strain. यहाँ पे elongation हुआ, but you may also have a case जिसमें you are pushing the body from both sides. आपके पास एक रॉड था और आपने दोनों साइड से एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया. तो इन दिस केस द रॉड विल गेट कंप्रेस्ड, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड विल चेंज. तो उसी स्ट्रेस को आप बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन को बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेन. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस वी डिफाइंड वाज वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. इस केस में व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक लिक्विड है, okay, and then you have a rubber ball, and what you do is, ये जो रबर बॉल है, इस रबर बॉल को आप एट अ डेप्थ लेके जाते हो. यू टेक दिस रबर बॉल टू अ डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड. इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो था V, and then because you have taken it to a depth, तो इस पे हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट होगा, and because of the pressure there is decrease in the volume, and the final volume is V minus delta V. So in this case, when a deforming force produces change in volume of the body, then the stress associated with the force is called as volume or hydraulic stress. और हमने वॉल्यूम स्ट्रेस डिफाइन करते वक्त we have said it is force upon area. But if you remember, but pressure is force upon area, therefore force is area into pressure. This is area into change in pressure upon area. Area cancel, मतलब there is only change in pressure. The volume stress is nothing but change in pressure, final pressure minus initial pressure. Or similarly, you have defined what is called as वॉल्यूम स्ट्रेन. और अगर आपको याद होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम विद अ नेगेटिव साइन.
Negative sign here indicates that the volume is decreasing. Clear up to this point? Now going ahead with next type of stress. तो जो अगला टाइप था that is called as shearing stress या फिर in short shear stress. तो shearing या फिर shear stress बोलते हैं. जैसे पहले टाइप का स्ट्रेस ने क्या किया, उस केस में द स्ट्रेस basically it was because the deforming force was changing length. So the stress associated with the force was called as longitudinal or tensile. If the force changes volume, then the stress associated is called as volume or hydraulic. In this case, the force is changing the shape of the body. Now, what we can do is, just for an example, हम एक क्यूब ले लेंगे और आपको पता होना चाहिए क्यूब का हर एक साइड, हर एक एज सेम लेंथ का होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब के केस में हर एक फेस होता है स्क्वायर, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज यू शुड नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अब ऐसा है, लेट अस टेक अ क्यूब. दिस इज अ क्यूब. इसको कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस गिव इट सम नेम. लेट्स कॉल दिस एज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. हमारे पास ये क्यूब है और हम इसका बेस को ए बी सी डी को फिक्स कर रहे हैं. पुटिंग अ ग्लू, चिपका दिया नीचे. फेविकॉल. Why फेविकॉल? बिकॉज फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं है, so it has to be fixed there, right? Just to tell you why, क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं होगा, आपने फोर्स लगा दिया तो शेप चेंज होने की जगह पे द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. तो यू फर्स्ट हैव टू कंसिडर द क्यूब, फिक्स इट्स बेस. और अब आप क्या कर रहे हो, आप इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो. यू आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स. व्हाई टेंजेंशियल? वेल, बिकॉज आपको शेप चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसी फोर्स को आपने नीचे लगा दिया होता तो मे बी इट विल नॉट चेंज द शेप. It will set the body into motion. हमको इसको tangential force apply करना है, and you should know what is the meaning of tangent. What is tangent? Is a line which touch a curve only at one point, single point. लेकिन यहाँ पे tangent मतलब ये जो force है ये ऊपर की surface को touch करके apply हो रहा है. So you are applying this force and it is called as grazing also. Grazing, touch करके जाना, right? So you have this tangential force. अब इससे क्या होगा? याद रखना, इससे क्या होगा, इससे क्योंकि नीचे का बेस फिक्स था, तो व्हाट विल हैपन इज जो ऊपर के लेयर्स है, ऊपर के मतलब बेस को छोड़ के, क्योंकि बेस तो फिक्स है, बेस को छोड़ के बाकी जो लेयर्स है दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग. तो दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग, तो शेप में चेंज होगा. तो देयर इज चेंज इन द शेप. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, तो ऐसा कुछ आने वाला है, राइट? मतलब एच शिफ्ट होके नई पोजीशन पे आ गया. लेट अस कॉल दिस एज एच डैश. ई शिफ्ट होके नए पोजीशन पे आ गया, ई डैश. एफ शिफ्ट होके एफ डैश एंड जी इज एट न्यू पोजीशन, जी डैश. एंड ओवरऑल इफ यू सी द शेप नाउ इज नॉट अ क्यूब. ये जो शेप है इट इज नॉट अ क्यूब. ये जो शेप है इट इज parallelepiped. This is called as parallelepiped, right? Clear? So when you apply a force on the upper surface to a cube whose base is fixed, then the shape changes. Shape change हो रहा है ना, length change हुआ ना, volume change हुआ, only shape is changing, right? तो यहाँ पे जो क्यूब था वो बन गया parallelepiped. Good. हमें यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, हमें डिफाइन करना है टेंसाइल नहीं, shearing stress. Exactly on the same line. Do you remember how we have defined tensile or volume stress? Same lines पे आप बोलोगे when a deforming force changes the shape of the body,
then the stress associated with the force, the stress associated with the force is known as shear or shearing stress. Force nahi, stress, because we are talking about stress associated with the force. Force is force, but stress is force upon area, right? Good. तो सबसे पहले आपको, as I told you, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पहले तो अगर required है तो डायग्राम ड्रॉ करो, then define basic things and then explain the situation. तो situation क्या था? We had a cube. कौन सा क्यूब? A B C D E F G H. So consider a cube A B C D E F G H whose base A B C D is fixed, और आप उसके बाद एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे कहां पे? अपर सरफेस पे, राइट? सो अभी ये जो हमने बोला है इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, दैट यू हैव अ क्यूब जिसका नाम आपने देके रखा है. सो कंसिडर a cube A B C D E F G H whose base A B C D is fixed, right? अब आप क्या कर रहे हो? अपर फेस पे यू आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स. A tangential force is applied at the upper face, E F G H. और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये क्या करेगा? शेप चेंज करेगा, which changes the shape of the cube and converts it into parallelepiped. पैरेललोपीपेड को नाम दिया था A B C D E dash F dash G dash H dash. करेक्ट? ये टेंजेंशियल वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेईई नीट के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. तो टेंजेंशियल फोर्स याद रखना, टेंजेंशियल है और डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे टेंजेंशियल है. ओके, गुड. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, और इन दिस केस बाय डेफिनेशन ऑफ shearing stress, so by definition of shearing stress, you have tangential force per unit area. तो जैसे स्ट्रेस डिफाइन किया था, तो स्ट्रेस ही है ये. स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया. तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, सिर्फ यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया. टेंजेंशियल फोर्स कितना था? Ft बाय, राइट? तो इसका यूनिट्स भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे, इसके डायमेंशंस भी m1 l-1 एंड t-2 होगा, राइट? तो नो चेंज इन द डायमेंशंस और इन द यूनिट्स. दैट्स ऑल यू नीड टू नो इन shearing stress. अब इंपॉर्टेंट है shearing strain. So let us define what is shearing strain. Okay, so shearing strain, how do you define shearing strain? is very simple. देखो अब ऐसा है, जैसे आपने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था? when a deforming force changes the shape of a body, then the stress की जगह पे the strain associated with the force is known as shearing strain. shearing strain, क्योंकि हम अभी strain define कर रहे हैं, that is why. तो यहाँ पे सिर्फ change क्या होगा? स्ट्रेस की जगह पे आप लिखोगे स्ट्रेन. गुड. तो यू विल राइट डाउन स्ट्रेन हियर. नाउ जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेन में डेल्टा L बाय L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक फॉर्मूला था. वॉल्यूम स्ट्रेन के केस में डेल्टा V बाय V एक फॉर्मूला था, करेक्ट? राइट. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ ओरली बोल के नहीं चलेगा कि oh, if the deforming force changes the shape, then the strain associated with it is known as shearing strain. So you need to have a formula. So how do we define? There is another way of defining
शेयरिंग स्ट्रेन, इसका और एक तरीका है, और मैं पहले लिख देता हूं। तो शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज the ratio of relative displacement of any layer, relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer, distance from the fixed layer। इसका मतलब क्या समझा देता हूं। देखो क्या हुआ, when you apply the tangential force, एक लेयर को छोड़ के सारे लेयर दे गॉट डिस्प्लेस्ड, शिफ्टेड, राइट। फॉर एग्जांपल सिर्फ बॉटम का लेयर छोड़ दो, उसको छोड़ के जो ऊपर का लेयर है, मान लो यहाँ पे कोई लेयर होगा, राइट, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई और लेयर होगा इसके ऊपर, तो वो भी डिस्प्लेस हुआ, राइट। सिर्फ बेस को छोड़ के, except for the base, every other layer shifts। तो how much is the shift, मतलब relative displacement। relative displacement मतलब ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो ऐसा हर एक अगर लेयर शिफ्ट हुआ है तो मैं सीधा ऊपर का ही लेयर ले लेता हूँ जिसपे फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो भी तो शिफ्ट हुआ ही है और सबसे ज्यादा शिफ्ट उसका है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर, करेक्ट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, एच डैश अपॉन क्या बोला मैंने, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो जो लेयर शिफ्ट हुआ उसका फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस क्या है, मतलब मैं बात कर रहा हूं टॉप लेयर की, मैं कोई भी ले सकता हूं, यू कैन टेक एनी लेयर, बट टॉप की बात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि टॉप सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। तो टॉप लेयर का डिस्टेंस कितना है, एच ए, कहां से, फिक्स्ड लेयर से। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन इट। तो पहले डिफाइन कर दो, तो मैंने अभी बताया, और shearing strain is the ratio of किसका रेशियो है, relative displacement of any layer to that of distance from the fixed layer, to that of distance from the fixed layer। इसका डिस्टेंस जो लेयर का डिस्प्लेसमेंट देख है उसका डिस्टेंस। अगर आप टॉप लेयर कंसीडर करो तो टॉप लेयर का डिस्टेंस, बीच में कोई लिया होता तो उसका डिस्टेंस, कहां से, बेस से, क्योंकि बेस क्या है, फिक्स्ड लेयर है बेस। गुड, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। यहां तक क्लियर, इज इट क्लियर। तो अब जैसे मैंने बताया, अल्टीमेट एम था फॉर्मूला बनाना। तो यू हैव shearing strain, relative displacement of any layer, okay, shearing strain equal to अपॉन जानबूझ के लिख रहा हूं मैं ऐसा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, तो टॉप मोस्ट लेयर कितना डिस्प्लेस हुआ, एच से कहां गया, एच डैश। तो एच डैश इज डिस्प्लेसमेंट, या फिर ई डैश, या फिर ई डैश, या फिर जी डैश, एफ डैश। So you can write down f dash, or you can also write down g dash. So you can also write down g dash upon distance from the fixed layer। h dash की बात करोगे तो उसका डिस्टेंस कितना है, h e की बात करोगे तो ed, f c g b, राइट। तो h a e d f c g b, ये बन गया फॉर्मूला शेयरिंग स्ट्रेन। एंड रिमेंबर, जब मैंने आपको बताया था स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स लेंथ भी चेंज कर सकता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डायमेंशनलेस, चेंज इन शेप अपॉन शेप डायमेंशनलेस, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे, शेप कितना चेंज होगा, कैसे डिफाइन करोगे, इसके लिए नया डेफिनेशन बनाया। But wait a minute, if your observations are good,
शेयरिंग स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों अलग अलग चीजें है ही नहीं फॉर्मूला वाइज। कैसे? ये जो शिफ्ट हुआ इसको मैं डेल्टा एल बोल देता हूं ना, और इसको बोल देता हूं एल। हाँ, तो क्या आ गया ये? यस, लेट एच एच डैश इक्वल टू ई ई डैश इक्वल टू एफ एफ डैश इक्वल टू जी जी डैश इक्वल टू डेल्टा एल, right? And L be the side of the cube, side मतलब edge of the cube। उसकी वजह से फिर आपको पता है एच ए ई डी एफ सी ये सारे के सारे हो गए edge of the cube मतलब L। therefore you can also write down shearing strain equal to delta L by L, right? अब जब ये लेयर्स शिफ्ट हुए, डिस्प्लेस हुए, तो एक एंगल बन गया थीटा। यहाँ पे जो एंगल है वो यहीं पे होगा, और वही एंगल यहाँ पे भी होगा, और वही एंगल यहाँ पे भी होगा। थीटा 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 एंड थीटा, राइट? व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बट from figure what you see is tan theta is opposite side upon adjacent side, लेकिन डेल्टा एल बाय एल तो shearing strain था, तो therefore shearing strain is equal to tan theta, right? अगर थीटा स्मॉल हुआ तो if tan theta, what is tan theta for small angle? What is sin theta for small angle? अरे थीटा कितनी बार तो हमने लिखा है, हमने कितनी बार लिखा है? sin theta is approximately equal to theta if angle is small, cos theta is approximately equal to 1 if angle is small, tan theta is sin theta upon cos theta, but sin theta is theta and cos theta is 1, so tan theta is theta. So for small angle tan theta की वैल्यू आ गई थीटा। Therefore, for small angle, for small theta, tan theta is approximately equal to theta, and therefore shearing strain is equal to theta. So that is just the angle. तो अभी shearing strain find करना है, तो in fact you can just check how much is the relative displacement upon what is the distance from the fixed layer, or you can just measure angle। दोनों ही आपको देंगे shearing strain, मतलब what is the change in shape with respect to original shape. This is how you define it. Good, simple, extremely simple and interesting topic. Now let us discuss a very simple topic which is called as Hooke's law। देखो हुक्स लॉ क्या होता है बताने से पहले, जस्ट टू टेल यू विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक 10 मीटर लंबा वायर है, उसको हमने सस्पेंड करके रखा है, और नीचे हमने 1 किलोग्राम का ब्लॉक लगा दिया। जब तक ब्लॉक नहीं लगाया था तब तक उसका लेंथ कितना था? 10 मीटर, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ कितना है? 10 मीटर। द मोमेंट आई पुट 1 किलोग्राम ब्लॉक, मतलब इट इज लोड, तो 1 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लो, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, राइट? तो 10 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद मैं एग्जांपल बता रहा हूं, लेंथ हो गया 10.1। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ? 10। व्हाट इज द न्यू लेंथ? 10.1। व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 0.1। लेट्स से अब मैंने 2 किलोग्राम का लोड लगा दिया उसी वायर पे 2, और लेट अस से न्यू लेंथ इज 10.2, तो चेंज इन लेंथ कितना है? 0.2, राइट? फिर 3 किलो का लगा दिया तो चेंज इन कितना है? 0.3। तो इन शॉर्ट जितना आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ाना मतलब स्ट्रेस बढ़ाना, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, सो इंक्रीजिंग डिफॉर्मिंग फोर्स मींस इंक्रीजिंग स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ भी उतना ज्यादा हो रहा है, राइट? मतलब स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ रहा है। तो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। ऐसा वॉल्यूम के केस में होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे
जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम होगा। ऐसा ही शेप के केस में होगा, राइट। इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज हुक्स लॉ। जितना ज्यादा फोर्स है मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस है, जितना ज्यादा स्ट्रेस है उतना ज्यादा स्ट्रेन है। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ states that within elastic limit, अब ये elastic limit क्या है मैं बताता हूं। within elastic limit, stress is directly proportional to strain produced in the body, is directly proportional to strain, right? This is what you know, ये पता होना चाहिए। good। इसका मतलब therefore stress is proportional to strain। आपको पता है कि जब आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने होते तो कांस्टेंट लिखते हो। तो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस साइन, यू हैव टू राइट डाउन अ कांस्टेंट। स्ट्रेस इज सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, देयरफॉर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, राइट। तो हुक्स लॉ का एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है क्या? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस दैट ऑफ स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम भी है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। This constant is known as modulus of elasticity. This constant is known as modulus of elasticity. Good. Now, what I want you to know is little bit mathematics. आपको अगर याद होगा, अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन के केस में जितना x बढ़ाओगे उतना ही y बढ़ता है। तो व्हाट यू गेट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, y इक्वल टू mx, वेयर m इज स्लोप, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, y को हटाएंगे, y की जगह पे लिखेंगे स्ट्रेस। तो वी विल रिमूव y, मतलब y की जगह पे हम प्लॉट कर रहे हैं स्ट्रेस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज प्लॉटिंग स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ y, एंड वी विल प्लॉट स्ट्रेन इंस्टेड ऑफ x, स्ट्रेन इंस्टेड ऑफ x, करेक्ट। तो आपके पास ये जो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट है ना, वो है स्लोप। किसका स्लोप? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का, राइट। तो ये जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हो, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर? तो पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आया ना, कैसे आया? क्या लिखोगे यहाँ पे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू m, बट m व्हाट? क्या था लिखा क्या हमने? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। thus what you can say is, thus modulus of elasticity is the slope of stress strain curve या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्लियर यहां तक? अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है? देखो आइडिया ये है, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जितना ज्यादा मैं फोर्स बढ़ाऊंगा उतना मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है। जीरो फोर्स मतलब जीरो स्ट्रेस मतलब जीरो स्ट्रेन, यहाँ पे पॉइंट है। फोर्स बढ़ा है मतलब स्ट्रेस बढ़ा है तो स्ट्रेन बढ़ा।
जितना ज्यादा फोर्स लगाया उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ हो रहा था, फिर और फोर्स बढ़ाया मतलब और स्ट्रेस बढ़ाया तो और स्ट्रेन बढ़ गया, तो यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये लिनियरिटी मतलब ये स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही होता है। किसकी वैल्यू? स्ट्रेस की वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which the stress strain graph is a straight line, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। इसके बाद एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि ओरिजिनल लेंथ था 10 मीटर, फिर 1 किलो लगा दिया तो 10.1 हो गया, 2 किलो लोड लगा दिया तो 10.2 हो गया, 3 किलो लगा दिया तो 10.3 हो गया, 4 किलो लगा दिया तो 10.4 हो गया, राइट। मतलब हर एक किलो के लिए 0.1 का चेंज। अब मैंने 4.1 कर दिया, लोड इज 4.1 किलोग्राम, राइट, और लेंथ तो सीधा हो गया 10.7, डिसप्रपोर्शनल नॉट प्रोपोर्शनल, राइट। तो इसका मतलब स्ट्रेस बढ़ाया थोड़े अमाउंट से, लेकिन स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया यहाँ पे। तो होता क्या है उस केस में? उस केस में द ग्राफ इज नो मोर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज समथिंग लाइक दिस। For a very small change in stress, you have a big change in strain. लेकिन जब तक जिस पॉइंट तक लीनियरिटी है, जिस पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लीनियर है, उस पॉइंट को बोलते हो इलास्टिक लिमिट, राइट। तो हाउ विल यू डिफाइन? इज अ वेरी सिंपल थिंग। कैसे डिफाइन करोगे? यू विल से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress strain graph is a straight line, is known as elastic limit। और इस इलास्टिक लिमिट के आगे क्या होता है वो हमको डिटेल में बाद में देखना है। हम डिटेल में देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट के बाद व्हाट हैपेंस विद द मटेरियल, हाउ स्ट्रेन चेंजेस विद स्मॉल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। क्लियर यहां तक? तो हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, सो कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस रेशो को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर चाहिए तो इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। The maximum value of stress up to which stress and strain are directly proportional, matlab the graph is a straight line, is called as elastic limit. Clear? Good. So that's it for today. We will stop at this particular point.